with their exceptional performance in academics and across all campuses. May I now request our chief guest, Sri Ranjit Kumarji, to felicitate our students and award them certificates and medals. I also request Professor R.K. Khandal, Dr. D.K. Modi, Professor Devendra Pathak and Sri Manav Modi to join him. The first recipient is Ms. Kajal Sharma of Center for Management Development. I request her to come on the stage to receive the silver medal and a check of Rs 21,000 for securing the second position. Ms. Kajal Sharma, can we have a big round of applause? Congratulations. God bless you. Thank you, Kajal. The next on the list, Mr. Satish Chandra of Center for Management Development. I request him to come on the stage to receive the bronze medal and a check of Rs 11,000 for securing the third position in his batch. Let's hear it for Satish Chandra. Everybody. Congratulations to you. God bless you. Congratulations, Satish. Can we have now Ms. Prabha Yadav of B Farm at Dr. Kedarnath Modi Institute of Pharmaceutical Education and Research to receive her certificate? We have Prabha with us now. Can we all hear it for her? Prabha? Let's give her a big hand. Prabha Yadav. Yes, wait. एक्साइट नहीं होते हैं और जिधर से आते हैं उधर से नहीं जाते हैं, इधर से जाओ, जिसे आए वो इधर जाओ, इधर से आना चाहिए था क्लॉकवाइज. ओके, वेरी गुड, नमस्कार, वेरी गुड. The next is Ms. Priyanka Goyal of Electronics and Communications Engineering at Dr. Kedarnath Ginni Devi Modi Engineering College. Ms. Priyanka Goyal to come on the stage to receive her certificate. She deserves a bigger round of applause. Ms. Priyanka Goyal. Very nice dress. Wish you all the very best. All the best. बहुत बड़ी बनना. Congratulations, Priyanka. Can we have now Ms. Chetanshi Sharma of Computer Science Engineering at Dr. Kedarnath Modi Engineering College? A big round of applause for Chetanshi Sharma. Give a big hand to Chetan. Mr. Sahil Singh of Class 12 at Dr. Kedarnath Modi Global School. Yes. Give a big hand to him. क्या खेलते हो साहिब? क्रिकेट कोई खेल होता है, टाइम वेस्ट होता है. Congratulations, Sahil. I
would like to call Miss Anshika Umar. I believe she was on her way to the function. In case she has arrived, can we see her? Anshika Umar. Thank you. Thank you, sir, for doing the honors. To make this event memorable for a lifetime and as a token of our gratitude, may I request our President, Dr. D.K. Modi, to present a memento to our Chief Guest, Honorable Solicitor General of India, Shri Ranjit Kumar. Ranjit. Thank you, sir. May I please request Shri Manav Modi ji, Trustee Dr. K.N. Modi Foundation, to present a memento to our guest of honor, Honorable Vice Chancellor, Uttar Pradesh Technical University, Professor R.K. Khandal. Can we all please give him a big round? Yes, sir. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, our guest of honor, Honorable Vice Chancellor, Uttar Pradesh Technical University, Professor R.K. Khandal, needs no introduction, as we all know him as one of the most dynamic personalities. It is like showing a lantern to the sun himself. I request Professor Khandal to please come over and give some inspiring thoughts to us. थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा बोलते हो आप। वेरी गुड, वेरी नाइस। परम आदरणीय श्रद्धेय श्री रंजीत कुमार जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठ के, आप बहुत अच्छे हो। आदरणीय श्री मोदी जी, बहुत अच्छा बोला आपने और सब कुछ ठीक से समझाया कि कैसे आपका फाउंडेशन चल रहा है, किस प्रकार से आप कर रहे हो। और ये ऑडिटोरियम जो आपका है ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए बच्चों, आप देखो इस ऑडिटोरियम की खास बात देखो, इस ऑडिटोरियम में ऊपर जालियां लगी है, इधर देखो ऊपर जालियां लगी है और इधर भी जालियां लगी है। ये क्रॉस वेंटिलेशन होता है, ओके। तो इसमें गर्मी में भी ठंड लगती है, ओके, और ठंड में गर्मी लगती है। मानव मोदी जी, थैंक यू वेरी मच। आपसे सिर्फ कन्वोकेशन में मिलना होता है, तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू बी देयर इन द कन्वोकेशन, भी आपसे मिलना हो। ऑनरेबल प्रोफेसर पाठक, थैंक यू वेरी मच। इट्स नाइस ओकेजन टू शेयर द डेज विद यू। निधि मोदी मैडम, बहुत और भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति और श्रद्धेयजन, प्रोफेसर्स, डीन्स, डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस, my dear students and their parents, good morning to all of you, and the students of the school who are sitting here right in front of us. Great, you are the most wonderful people of the day today. You are the guest of honor, in fact. आप में से कुछ बैठे हैं वज्रासन पे, कुछ बैठे हैं सुखासन पे, कुछ बैठे हैं उल्टे सीधे आसन पे। ये ठीक नहीं है, सब लोग या तो वज्रासन पे बैठे हैं या पद्मासन पे बैठे हैं। आपकी उम्र में अच्छे आसन लगाना बहुत आवश्यक है, ओके। आप अभी से ठीक से आसन लगाने तो बहुत ऊपर जाओगे। और देखिए ये हमारी संस्कृति है, दीक्षांत समारोह में बच्चों का भाग लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को कि उन्होंने बच्चों को बुलाया दीक्षांत समारोह में। हमारे देश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है, अबाउट 17% है, और हमारा टारगेट है कि हम उसको 30% करें जल्दी से जल्दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि अगले 5 साल में हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 30% हो जाए। अब वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम हमारे बच्चों को
ये दिखाएं कि क्या पर्पस है एजुकेशन का, और दीक्षांत समारोह में भाग लेना उस पर्पस को फ्रुक्टिफाई करता है, उस पर्पस के लिए इंस्पिरेशन क्रिएट करता है। तो इन बच्चों का दीक्षांत समारोह में आना बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच, आप सब आए। अच्छा लग रहा है आपको? मोदी जी को देखा है आपने? देखा है? एकदम सीधे खड़े रहते हैं, आपकी तरह से टेढ़े मेढ़े नहीं होते। तो सीधे बैठना सीखो। अब एक ही पोस्चर में बैठे रहोगे जब तक कि बोला ना जाए कि पोस्चर चेंज करो, अगर बहुत बड़ा बनना है तो। ये देख रहे हैं आप सॉलिसिटर जनरल साहब, बहुत 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 ही हाई पोजीशन है। जब उनकी पोजीशन पे पहुंचना है तो एकदम अच्छी तरह से वज्रासन। और मियां आप वज्रासन नहीं लगा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आपके पैर में फ्रैक्चर है। क्यों फ्रैक्चर हुआ? इसलिए फ्रैक्चर है कि पद्मासन लगाना पड़ेगा, है ना? हमेशा और खूब दौड़ा करो, और कोई मुंह पे हाथ नहीं रखेगा, मुंह पे, और कोई उंगली नहीं देगा नाक में। आप जैसे सबको देख रहा हूं मैं, कोई नाक पे उंगली दे रहा है, कोई मुंह पे हाथ रख रहा है, मुंह पे हाथ दे रहा है, बिल्कुल नहीं करेगा। और शांति से सुनोगे अभी 10 मिनट, ओके? My dear friends, the gross enrollment ratio of India is actually around 17%. Our target is about 30%. Now this is a situation when we are so large in number, 125 crores भारतीय। तो अगर 125 करोड़ भारतीयों में सिर्फ उनकी जो यंग जनरेशन है, which we always say is the biggest asset for Indians in India, which is about 65% of them less than the age of 30, if the gross enrollment ratio is so low, so poor, that means we are not developing very fast, and we need to develop very fast for several reasons. First and foremost, of course, is the reason that our youth have to lead the world, because all over the world सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो ये है कि अच्छे गुणवान व्यक्तित्व की आवश्यकता है हर जगह। अब देखिए, आप गल्फ कंट्रीज में चले जाइए, उनको भगवान ने खूब सारा पेट्रोलियम दिया, तो उनके जमीन के नीचे इतना सारा धन दिया, लेकिन उनको यहां पे कुछ भी नहीं दिया। समझ रहे हो? और जिन जिन को जो दिया, उन सबको मैनेज करने के लिए बुद्धिमान व्यक्तियों की आवश्यकता है। और भगवान ने इंडिया में पेट्रोल भले से ना दिया हो, लेकिन बुद्धिमानी बना दिया सारे इंडियंस को। बाय बर्थ इंडियंस जो है वो बुद्धिमानी होते हैं। उसका कारण यह है, दो कारण है उसके। एक तो ईश्वर की कृपा है, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी धरती है जिस देश में गंगा बहती है, और जहां पे राम भी पैदा हुए, कृष्ण भी पैदा हुए, बुद्ध भी पैदा हुए, जैन भी पैदा हुए, सारे जितने जितने महापुरुष, जितने जितने अवतार, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, सब लोग जितने अवतार हैं वो सब भारत में हुए। तो एक तो ये कारण है कि ईश्वर की महती कृपा है हम सब के ऊपर। और दूसरा कारण यह है कि जो हमारे पूर्वज थे वो एक ही काम करते थे, और वो काम था, कौन से अंग का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे? मस्तिष्क का। अब आप देखो, जिस अंग का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है शरीर में, वो अंग उतना ही विकसित हो जाता है, सबको मालूम है। अब देखिए, सुडानीज को देखिए, सुडानीज जहां जाते हैं ओलंपिक्स में, मैराथन में जीत जाते हैं, क्योंकि उनको दौड़ने का काम है, ऊपर नीचे दौड़ना, बचपन से लेके उनका दौड़ने का काम रहता है। अब हमारे एक बीमारी लगी हुई है क्रिकेट की, उससे मैं बड़ा परेशान होता हूँ। सारे बच्चों से पूछो क्या खेलते हो, तो बोले क्रिकेट खेलते हैं। तो आप बच्चों, आप एक तो क्रिकेट तो देख लेना, देखना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन खेलना मत। और खेलना पता है क्या? खेलना बैडमिंटन। साइना नेहवाल, मालूम है साइना नेहवाल क्या किया था उसने? चाइनीज ओपन जीता। वो एक ऐसी महिला खिलाड़ी है बैडमिंटन की जिन्होंने दिखा दिया कि चाइनीज लड़कियों को कैसे बीट करना होता है। एक के बाद एक के बाद एक सबको पीटा उसने, और फिर चाइनीज ओपन जीता पहली बार। नॉन चाइनीज ने चाइनीज ओपन जीता, तो उसने करके दिखाया लास्ट ईयर। आपने देखा था ना?
और फिर कश्यप ने मेंस में जीता, दोनों ने। या नहीं, हाँ जी। या क्या होता है? या नहीं होता, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पूर्वजों ने जिस शरीर के अंग को सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए वो था मस्तिष्क। और इतना ज्ञान हमारे देश में हमें पैदा होते ही मिलता है उनकी कृपा से, इसलिए हम पैदा होते ही बुद्धिमानी है और इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर कोई बड़े बड़े देश ये चाहें भी कि इसमें कुछ कर दें, इसको चेंज कर दें, वो कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये तो ईश्वर की कृपा है। अब मैं कंपेयर कर रहा था आज कि अमेरिका में कैसे होता है और इंडिया में कैसे होता है। देखिए, हमारे यहाँ सब लोग ज्ञानी इस प्रकार से हैं। कल मैं ट्रैवल कर रहा था पटना से, यहाँ पटना में बिहार एजुकेशन समिट था और उसमें भाग लेने में मैं गया था। तो चर्चा ये हो रही थी कि कैसे हम लोग भारतीय जो है कैसे एजुकेशन में बढ़िया से ठीक से आगे बढ़े। तो प्लेन में